Hi, friends. Today I'm talking about personal growth. Just like physical growth, personal growth doesn't happen automatically. It just doesn't happen. The way we grow physically from a child to an adult, but we can't grow like that personally. For personal growth, we have to be intentional about it. We have to make goals in the areas that we want to grow, and we have to grow towards the goal. Achieving the goal is not important, growing is important. So, make your goals and grow towards them. Hi everyone. Hi. Good afternoon. So this is me, Good your afternoon. host Anupama, and along with Dr. Kirti, our co-host and the speaker as well. We are here back with our Cleft Sundays. And the best part about today's Sunday is that first of all, we are in Kolkata. We are having a very chill time out here. And secondly, we're also live on Facebook. So this is like a first live session. So before I start, I really want to ask this first question to everyone who's joined us today. Is that what is it that you have taken from Cleft all these while for all those sessions that you have attended? Is there anything that you've taken, and have you started anything, using the Cleft Sundays, the information that we share, the knowledge that we share, and all those things that we discuss? Have you actually used it in your personal lives to make yourself as a better person, a better human being? Is there anything that you want to share about the Cleft Sundays that have happened or that actually are happening, and how is it actually making a difference in your life? So I invite anyone to please share. But before that, Dr. Kirti, are you live? I also want to, can you also give your quick intro? Yeah, hi everyone. Me, Anupama, and Preeti, we are cousins. Preeti is my real sister, Anupama is my cousin sister. We all are chilling out in Kolkata, Taj Kolkata, with our kids. And creating this outing was itself a choice, new choice that we made. And so today we are talking about power of choice. For those of you who don't know me, I am a doctor. I'm a radiologist by profession, and I am a humanitarian by passion. I'm a mother to 8-year-old boy, and me and Anupama, we have started this Cleft Creating Leaders for Tomorrow Facebook prayer platform just the end of last year, in the last week of December, and since then we've been conducting every Sunday some sessions on some topic. So there are various concepts that we create. One of them is we introduce people who are heroes of the week, where people who are doing good work, we introduce them. Second is we invite experts on a platform to talk about various टॉपिक्स विच आर रेलेवेंट हम सब के लिए. जो लाइफ के टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं. और कभी कभी जब हमारा मन करता है तो फिर हम खुद भी अपने लाइफ के लेसन्स में और अनुपमा शेयर करते हैं. वी आर ऑल्सो लर्निंग, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग. सो राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इफ any of you has made any single choice in last 2 months watching our programs, then please share, please come on the platform and please share. It will be a motivation for us, and it will really great to be connected with you all. And it will also help us to grow better, because we want to know what is it that actually is making a difference in your life, and we are here to create a difference in your life as well. Yeah, and and all of you, you can introduce yourself, your name, your place, from where you're joining, or if whatever you do in life. If we don't know you, please introduce yourself. If we know you, then please still introduce yourself, for so that other people can know कि कहाँ हम सब कहाँ से login कर रहे हैं. Someone from Kolkata itself. Yeah, Meenakshi, I know her. Okay. Okay, Meenakshi, do you want to share? Share any experience? Yeah, I've been connected to Dr. Kirti from another group. She's a lovely person by heart, and she really helped me out a lot. And like Calcutta is a beautiful city. You must visit and have bhel puris and puchkas out there. Surely we will. That's great. Thanks for sharing. Anyone else? Hi, Nitin from Kerala. Nitin, do you want to share something? I know Kirti very nicely. She knows me very nicely. Wow. She's a good friend of me. Her classes are very super.
about Okay. the ADHD class, which was a super class. It was a very informative class. As I am suffering from ADHD and dyslexia, her classes were very motivating to me. So it's a good opportunity, a good platform to interact with the people with the same problems and get the solutions for that. So it's a thank you for Dr. Kirti and all the people who has been joining, and it's a well understanding of the problems how I am facing, and this similar to the people who are facing the same problem. So I can understand that it's not me only. It is the same pattern is been followed by the every people. So it gives me a calmness that my sufferings are being the same as different people. So I can understand that it's not my problem. It's really a problem of that disorder or something. So it was a great eye opening for me. Thank you for the sections. Yeah. Great. Thank you so much for sharing, Nitin. By That's the way, wonderful. Nitin was not talking about cleft sessions. I also do other sessions. I am myself a recently diagnosed case of ADHD, and my son is ADHD, and my mom was ADHD. We did not know. So I realized that I have learned a lot dealing with these things. So I create sessions on my take on ADHD. So Nitin is talking about those sessions, and thank you, Nitin. Yeah. Thank you. Thank you so much, Nitin. I have learned a lot of things. And to begin with, the first thing that I've actually started doing is bringing a system in my own life. When I'm talking about a system means just having a normal, starting following a normal and a balanced life with giving importance to health, giving importance to sleep, giving importance to proper food. So this is the most basic thing which I have started doing after my clefts, attending the sessions and plus hosting the sessions. That is one great thing which in the last 2 months I've started doing. Apart from that, I have started reading a lot of books. I always thought that there was no time for me. And I was always a fan of reading books, but because of all those other things, reading books they were just eradicated from my life. मेरे life में books का कहीं नामो निशान नहीं होता था. But after doing Cleft Sundays, I've actually made a point to start reading books, and especially books on personal growth, self-development. They keep me really motivated to a huge extent. That is my second thing, it's like my key takeaway. And the third big thing is, which of course we're going to take a session today, is having actually a victor mindset and not a victim mindset. And I'm sure we'll talk about this as Dr. Kirti. She'll actually share the whole idea about what the mindset means. But yeah, these are the three things which I've learned from Cleft Sundays. First question was, Anupama, you talking about ki you will choose positivity over negativity. So were you able to make that change? I have made a huge change. I was a person who used to always find out reasons of not doing a thing. मतलब सारे reasons मिलते थे कि ये क्यों नहीं कर सकते हैं. But I never found out a reason कि ये क्यों कर सकते हैं. So for a very small example, just coming to Kolkata itself, I found out a lot of reasons कि हम कोलकाता क्यों नहीं जा सकते हैं. Basically, just to give a background, Kolkata is a place where my husband, he is based here in Kolkata, and there was a huge thing where I always thought कि I cannot go to Kolkata. It's always he has to travel and come to me because I'm based in Delhi. But just this thought that no, it's not necessary that always he has to come, and I have to make an effort also, and I can also make an effort. Just changing this thought process has actually brought me here, and we are having a great holiday here with my entire family, along with my cousins, like with Dr. Kirti and Preeti, of course. So yeah, this itself is changing my whole thought process from a negative way of thinking to a positive way of thinking. That is how it has affected me and changed me. So today's session, today we are talking about power of choice. So actually क्या देखना है कि life में we all are dealing with challenges. Everybody has challenges.
ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास चैलेंजेस नहीं है. चैलेंजेस का लेवल चेंज हो सकता है, लेवल 1 challenges, level 2 challenges, but we all are dealing with challenges. And sometimes when there are too many challenges, we get overwhelmed, and either we बहुत ज्यादा challenges हो जाते हैं और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है तो कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन माने सब गड़बड़ हो गया, लेकिन कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी कभी उस ब्रेक डाउन में हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वी ब्रेक डाउन एज अ पर्सन, वी ब्रेक. तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है. दैट इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं. 2 यूनिक गिफ्ट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को मिले हैं, उन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे. उसमें से एक है चॉइस. अगर आप देखें तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको कोई चॉइस नहीं मिला है. टाइगर को चॉइस नहीं मिला है कि वो वेजिटेरियन खाएगा या नॉन वेजिटेरियन खाएगा. ही इज नॉन वेजिटेरियन बाय डिफॉल्ट, ही डजंट हैव अ चॉइस. काउ डजंट हैव अ चॉइस कि उसको नॉन वेज खाना है कि वेज खाना है. शी इज अ वेजिटेरियन बाय डिफॉल्ट. But as a human being, we are gifted with the power of choice. We have a choice whether you want to eat vegetarian, whether you want to eat non-vegetarian. I'm just saying, non-vegetarian, vegetarian. It's not about bias. आपकी अपनी life choices है. It's like about healthy food, unhealthy food. We have a choice. काउ के फूड डिसाइडेड है, एनिमल्स की फूड डिसाइडेड है. हम चूज कर सकते हैं एट एनी टाइम. हमारे पास एट एनी टाइम बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और चॉइसेस 2 तरह के होते हैं. वन इज इजी चॉइस एंड वन इज राइट चॉइस. इट्स एंड द राइट चॉइस कैन बी द टफर चॉइस. जब हम चूज करते हैं उस वक्त हम इमोशंस के बेस पे चूज कर रहे हैं या हम अपनी रैशनल थिंकिंग या हम अपनी इंटेलेक्ट को यूज करके चूज कर रहे हैं. उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डिसीजन इजी डायरेक्शन में जाएगा या राइट डायरेक्शन में जाएगा. चॉइस करते वक्त हम किसको क्या, मम्मी क्या सोच रही है, पापा क्या सोच रहे हैं, या मैं क्या सोच रही हूँ, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, या किसी फियर से ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, या हम एक्चुअली में दिमाग लगा रहे हैं, इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. एंड वन चॉइस चेंजेस, समटाइम्स वन चॉइस चेंजेस एवरीथिंग. मतलब आवर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ चॉइसेस दैट वी मेक. हम हर मिनट पे चॉइसेस करते हैं. कभी कभी वो चॉइसेस हमारी जिंदगी को बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में ले जाती है. जब चूज करते हैं उस वक्त हम टाइम नहीं लगाते, उस वक्त हम इंस्टेंटली जो इजी चॉइस है वो कर लेते हैं. लेकिन लाइफ में अगर कभी हमारी वो चॉइस गलत हो जाए, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में सही और गलत चूज करना तो है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ हमारे चॉइसेस पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं. उस टाइम पे फिर हम रिग्रेट करते हैं अगर हमने कोई जल्दबाजी में चॉइस किया या इमोशनल लेवल पे कुछ चूज किया, और उस टाइम पे हम ब्लेम करना चाहते हैं किसी को कि मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसकी बात मानी थी, मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसकी बात मानी थी. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी की भी बात मान रहे हैं, बट एट द लास्ट पॉइंट वी आर द वन हु आर चूजिंग. So while making a choice, we have to be mindful. We have to think. We have to give it a time. कि जो हम चूज कर रहे हैं, ये पापा के कहने पे मैंने नहीं किया, ये मम्मी के कहने पे मैंने नहीं किया, ये मैंने चूज किया है कि मम्मी ऐसा बोल रही है और इसलिए अब मैंने चूज किया कि मुझे ये करना है. It can be your career, it can be about marriage, it can be about little things, it can be about buying stuff. हम लोगों को खुश करने के लिए कर देते हैं, हम कहते हैं मैंने उसको खुश करने के लिए किया था और ये डिसीजन गलत हो गया. तो गुड और बैड चॉइसेस के ऑप्शन हमारे पास हर बार हर कदम पे छोटे छोटे उसमें रहते हैं. And everything in our life is a reflection of choices that we make. And if we want different results, then we have to make different choices. So we can stop and think, are you happy with your life? Are you happy with your profession? Are you happy with the negativity around you? Do you think you have harmony in your house? Do you think that you are happy with your kids? Or do you think your kids are happy with you? Do you think you are happy in your profession? These are all the results of choices. छोटी छोटी हर वक्त हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चूज कर सकते हैं. हर छोटे छोटे मिनट्स पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चूज कर सकते हैं. तो एक तो ये चॉइस जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की यूनिक पावर है. सेकंड जो हमको मिलता है वो है हमारा इंटेलेक्ट. एक है हमारा माइंड और एक है हमारा इंटेलेक्ट. माइंड और इंटेलेक्ट दोनों ही थॉट्स है, ठीक है. बेसिकली द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड थॉट्स इज जो रैंडम थॉट्स आए, जो भी थॉट आया और हमने तुरंत से उस पे एक्शन ले लिया, दैट इज माइंड. मन में कुछ भी आ सकता है. मन में लाइक, डिसलाइक, हेट, लव. मन बायस्ड हो सकता है किसी के लिए. राइट रॉन्ग के बिना भी मन चूज कर सकता है. और दूसरा जो रैशनल थिंकिंग है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग है, जिसमें हमने सारे सही गलत को सोच समझ के किया है, तो वो इंटेलेक्ट, उसे कहते हैं इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट इज द रैशनल थिंकिंग. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये इंटेलेक्ट ह्यूमन बीइंग्स के पास है. ये इंटेलेक्ट is our special gift given to human beings.
आवर ह्यूमन ब्रेन इज डेवलप्ड मोर देन एनिमल ब्रेन्स. एनिमल ब्रेन्स के पास में लोअर लेवल ऑफ फंक्शंस है, जिसमें खाना पीना, सोना, बेसिक सेफ्टी, उन सब चीजों के बारे में जो एनिमल ब्रेन सोचता है. और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास वो स्पेशल पावर है कि हम इन चीजों से ऊपर उठ के भी वी कैन मेक बेटर चॉइसेस, वी कैन थिंक, वी कैन एनालाइज थिंग्स. जैसे हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करें तो हम परख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है. हाँ, आपने किसी सिचुएशन को परख लिया कि ये सही है, ये गलत है, उसके बाद आपने गलत चूज करना चाहते हो, आपको जिंदगी में पता होना चाहिए कि मैंने खुद ये चूज किया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर नेगेटिव होंगे तो फिर आप स्ट्रांगली उस चीज को, लास्ट में जब कॉन्सिक्वेंसेस है, देन स्टे स्ट्रांग एंड बी ब्रेव एंड टेल द वर्ल्ड कि यस, जब मैंने ये चूज किया था तो मुझे पता था कि ये चॉइस एंड में गलत साबित हो सकती है. एटलीस्ट डोंट ब्लेम अदर पीपल. व्हाट वी एंड अप डूइंग इज वी एंड अप फाइंडिंग पीपल जिनको हमें ब्लेम करना है. तो दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में इन सारे चॉइसेस और इंटेलेक्ट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए. एक तरह के लोगों को विक्टिम माइंडसेट से हम डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा हम विक्टर माइंडसेट से डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन विक्टिम विक्टर से पहले मैं थोड़ा हिंदी में बताना चाहूंगी. एक हो गया कारण, एक हो गया निवारण. मतलब एक तरह के लोग हैं जो हर जगह प्रॉब्लम बताएंगे आपको. ये नहीं हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, मेड नहीं आई है, पढ़ाई नहीं हो रही है, सेशन ब्रेकडाउन हो गया, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है. एक तरह के लोग होंगे जो कारण पे फोकस करेंगे. शायद आज का ये चैलेंज इसीलिए आया हो मुझे टेस्ट करने के लिए कि बढ़िया ये विक्टिम विक्टर की बात करने वाली, आज इसी का एग्जाम ले लेते हैं. सो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. एक फोन की बैटरी खत्म हो गई है, लैपटॉप से चालू नहीं हो रहा. मेरा पीपीटी जो मैंने बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ. तो एक तरह के लोग होते हैं जो कारण पे जाते हैं, जो कारण पे फोकस करते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है और ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा. तो एक तरह का जो कारण के बारे में बात करते रहते हैं, प्रॉब्लम मेंटालिटी. तो वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं. फिर एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं सोल्यूशन मेंटालिटी या निवारण के बारे में जो सोचना, मतलब कारण वर्सेस निवारण. या तो कारण, एट एनी पॉइंट हमें अपने आप से ये पूछना है कि मैं कारण स्वरूप हूँ या निवारण स्वरूप हूँ. एम आई द सोल्यूशन? एंड इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सिंपल, बस दो छोटी सी इक्वेशन है. आप किसी भी सिचुएशन में, दुनिया में हर जगह आज लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं. आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं या आप इस सिचुएशन से ढूंढने का सोल्यूशन सोच रहे हैं. आपके पास दो ही चॉइस है एट एनी गिवन ऑफ टाइम. तो कुछ लोग हैं जो कारण स्वरूप लोग होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. और जो निवारण स्वरूप वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं ये ऐसे होगा. आई मीन दे विल ऑलवेज थिंक यूनिकली, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो आपकी एनर्जी लो हो जाते हैं, तो आप क्रिएटिव सोल्यूशन सोच ही नहीं सकते हो. लेकिन अगर आप सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग सिचुएशन अफेक्ट यू. एंड अगर आप सिचुएशन को खुद को अफेक्ट नहीं करने दोगे तो आप हायर एनर्जी स्टेट में होते हो. तो हायर एनर्जी स्टेट में क्रिएटिविटी वर्क्स बेटर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वर्क्स बेटर. यू माइट गेट यूनिक आइडियाज जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा. आज थैंक गॉड हम फेसबुक लाइव पे है तो आज हम कर पा रहे हैं ये सारा. सो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और रिफाइंड, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके जाए, तो ये दो तरह के माइंडसेट होते हैं. एक होता है विक्टिम माइंडसेट और एक होता है विक्टर माइंडसेट. तो उससे पहले जो ह्यूमन बीइंग का जो सेकंड गिफ्ट है इंटेलेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे. आप समझ लीजिए कि इंटेलेक्ट, हम सब इंटेलेक्ट के साथ बॉर्न होते हैं. वी ऑल आर गिफ्टेड विद इंटेलेक्ट. लेकिन इंटेलेक्ट, जैसा कि आपने वो वीडियो देखा, पर्सनल ग्रोथ इज नॉट ऑटोमेटिक. इंटेलेक्ट डज नॉट ग्रो विद एज. वी हैव टू मेक एफर्ट. हमको इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू लिव, टॉक टू राइट पीपल, वी हैव टू टॉक, रीड राइट बुक्स, वी हैव टू आई डोंट नो, टेक सेमिनार्स. मुझे याद भी नहीं है मैंने जिंदगी में कितने सेमिनार्स किए अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को बेटर हैंडल कर पाने के लिए. और शायद उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने बात कर पा रही हूँ, बिकॉज आई वर्कड अ लॉट टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस. So you have to invest in your personal growth. You have to invest in your intellect. It's like just like एक कुल्हाड़ी है जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं. जो एक स्टोरी है बहुत छोटी सी. दो लकड़हारे लकड़ी काट रहे काटने जाते हैं जंगल में. एंड वन ऑफ देम स्टार्ट्स सीधे लकड़ी काटना एंड द अदर पर्सन इज वो अपनी एक्स को क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहा है. तो जो लकड़ी काट रहा है वो उसको बोल रहा है तुम टाइम वेस्ट करो. तो वो कुल्हाड़ी जो धार को तेज कर रहा है वो बोल रहा है कि नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. आई एम शार्पनिंग माय एक्स सो दैट माय स्पीड एंड माय एफिशिएंसी इंक्रीजेस. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें लकड़ियां काटनी है. मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे पास जिंदगी में कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं. मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. मेरे पास सेमिनार अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है. हमारे पास रोने के लिए टाइम होता है. हमारे पास आई डोंट हैव टाइम फॉर हेल्थ, आई डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज, बट वी हैव टाइम फॉर डिजीज. सो वी डोंट हैव टाइम टू शार्पन आवर एक्स. अगर हम अपने पर्सनल ग्रोथ में
पे काम करेंगे, हम जिंदगी के हर चैलेंज को बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इमोशनल ड्रेनेज में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम बचेगा और हम वी कैन डू अ लॉट. सो इंटेलेक्ट ऑलवेज हैज टू बी बिगर देन माइंड एंड इट डज नॉट ग्रो ऑटोमेटिकली. इंटेलेक्ट को माइंड से बड़ा करने के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है, वो अपने आप कभी भी इंटेलेक्ट माइंड से बेटर नहीं जाएगी. सो one thing we have to give, we are gifted two things as a human being, which is a unique gift to humans. It is not given to any other species on planet. One is choice, one is intellect. ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है और इन दोनों चीजों को जो एक्सरसाइज करके दो तरह के माइंडसेट बनते हैं, कारण स्वरूप, निवारण स्वरूप, या विक्टिम वर्सेस victim mindset. Now victim versus victim mindset is a very important thing because सुनने में बहुत आसान लगता है. कुछ लोग हर चीज में मतलब helplessly they take life as helpless. Everything is happening to them. हमारा कोई रोल नहीं है जिंदगी में. मैं क्या करूं, मौसम खराब है, मैं क्या करूं, ये हो गया, मैं क्या करूं, वो हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे साथ ये हो गया. इस तरह की बातें करने वाला एक जो एटीट्यूड है, इसे विक्टिम माइंडसेट कहते हैं. और जो विक्टिम माइंडसेट होता है, वो विक्टर माने की जीतने वाला माइंडसेट. मतलब एक ऐसा माइंडसेट कि आपका सिचुएशन कैसा भी हो, आप फिर भी उस सिचुएशन से बाहर एक विनर की तरह निकल सकते हो. वो जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट विक्टिम माइंडसेट, उसमें क्या होता है कि आप हमेशा प्रॉब्लम हो गई, आप उस प्रॉब्लम को न्यूट्रल तरीके से लेते हो कि ओके ये हो गई, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू नाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन. सो दे विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम. दे विल इमीडिएटली जंप टू द नेक्स्ट स्टेप कि ओके ये हो गया, मेरा लैपटॉप इतनी सुंदर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैं आपको वो नहीं दिखा सकती हूँ, बट आई एम नॉट लेटिंग माई सेल्फ फील बैड अबाउट इट. आई एम नॉट लेटिंग माई सेल्फ, ऑब्वियसली मेरे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा होगा, हो सकता है फर्क पड़ा होगा, बट आई डोंट टेक लेक्चर्स कि मैं किसी से और से सुन के और किसी को कुछ बोल दूं. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. सो इट डजंट मैटर अगर वो प्रेजेंटेशन उतनी सुंदर नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ, बट आई एम एबल टू शेयर जो मेरे दिल में मैसेज है. सो victor people are always winners. They are able to solve every problem, not because they have more resources, not because they are more blessed, not because they are more lucky, but just because of their attitude. और ये attitude हम सबके पास है. It is a choice. We all can choose. Victim mentality versus victim mentality. We all can choose to be a victor or a victim or a victim at any given point of time. But जो victim होगा, वो कहेगा वो उसके तो एग्जाम इसलिए पास हो गए क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसे है, उन्होंने उनको कोचिंग करा ली. वो कभी उसका हार्डवर्क नहीं देखी, फॉर एग्जाम्पल. और जो विक्टिम होगा वो किसी भी सिचुएशन में उसको जो करना है वो करके रहेगा. मैं आपको 3 एग्जाम्पल देती हूँ. इंडिया का सुपर साइक्लिस्ट है, उसका सुपर साइक्लिस्ट इज अ पर्सन, ही डजंट हैव आर्म्स एंड ही इज अ साइक्लिंग चैंपियन. हाउ मेनी पीपल आई नो जिनके हाथ है, पैर है, लेकिन उनकी साइकिलिंग करने की इच्छा नहीं है. बट दिस पर्सन जिसके हाथ नहीं है, उसने कैसे साइकिलिंग किया होगा, उसने साइकिल पे कैसे बैठा होगा, वो कितनी बार गिरा होगा, बट ही डिसाइडेड नॉट टू लेट हिज disability stop his life. Then there is another person, Nick Vujicic. अगर आप गूगल करेंगे Nick Vujicic, he is a super motivator of this world and he's amazing. Every time, whenever I'm sad, whenever I'm depressed, I just switch on the Google YouTube video and I see Nick Vujicic. He's the biggest motivator. He doesn't have arms, he doesn't have legs, and he has a beautiful love life. He's a very good motivator. पूरी दुनिया में घूम के वो motivating lectures लेता है उन लोगों के लिए जिनके पास हाथ भी है, पैर भी है. So it's not about what you have, it's about the attitude. And the third person that I wanted to talk about was Muniba Mazari. She's a lady, she's a very beautiful lady, Pakistani lady, and she lost her legs in an accident. And a beautiful person like her, मतलब उसके लिए जिंदगी का शायद वो सबसे बुरा हो सकता था कि she lost her legs. Now she's no more as beautiful as she was, and but now she's because of her attitude. उसने भी डिप्रेशन में गई होगी, वो भी डिप्रेशन से बाहर आई होगी, उसको भी ब्रेकडाउन हुआ होगा, but something she must have decided कि नहीं, मैं इस डिसेबिलिटी को डिफाइन नहीं करने दूंगी, मैं क्या हूँ. आई एम नॉट दिस डिसेबिलिटी, आई एम समथिंग मोर देन दिस डिसेबिलिटी. एंड नाउ इफ यू गूगल मुनीबा मजारी, शी इज वेरी वेरी मोटिवेशनल स्पीकर, एंड वो इतने अच्छे काम कर रही है इस दुनिया में कि शायद हम लोग अपने घर पे सोफे पे बैठ के बस टीवी देखते रहेंगे, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने अच्छे काम कर रही है. सो इट्स ऑल अबाउट विक्टिम माइंडसेट एंड विक्टिम माइंडसेट. तो
जो कोटेशन है इसमें आई वांट टू शो दैट ये विक्टिम और विक्टर माइंडसेट का एक वो है स्क्रीनशॉट डिफरेंशिएट करने के लिए, जो लैंग्वेज विक्टिम और विक्टर यूज करता है। जो विक्टर है वो बोलेगा कि ये सिचुएशंस मुझे डिफाइन नहीं करती, ये मेरी जर्नी का एसेंशियल पार्ट है एंड दे मेक मी ग्रो। जो विक्टिम है जो बोलेगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जो विक्टर है वो बोलेगा कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आप इसको स्पिरिचुअली लेना चाहें तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, एवरीथिंग गेट्स सॉल्व्ड, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। You whatever energy you throw out in the world will come back 10 times to you, simple. Every जो cause and effect का example है, everything is laws, everything is physics. But if we don't want to go into spirituality, so many people don't even believe in God or spirituality, so that's okay. But there are people, the victim जो victor mindset है, जो champion mindset है, victor को मैं champion बोलूंगी, जो champion mindset है वो बोलेगा मेरी जिंदगी में जो भी हो उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जो विक्टिम है वो बोलेगा कि मैं यहाँ पे मेरे माँ बाप की तरफ वजह से पहुंचा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने करियर ऐसे चूज किए जो उनको कभी नहीं चाहते थे, अब उनके माँ बाप के प्रेशर में आके उन्होंने किया। बट माई क्वेश्चन टू देम इज अल्टीमेटली इट इज अस हु मेक दैट फाइनल चॉइस कि हाँ मुझे अपने मम्मी पापा की बात माननी पड़ेगी, या आपने अपने पेरेंट्स को इनफ कन्विंस नहीं किया या आप वो नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। एंड जो चैंपियन माइंडसेट है वो बोलेगा कि मैं जैसा भी हूँ, ये मेरी जिंदगी के चैलेंज मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं एंड मोर लविंग बनाते हैं एंड आई एम्ब्रेस एवरीथिंग। सो आई कैन से दैट मेरी जिंदगी में जो भी चैलेंज आता है मैं उस वक्त एक चीज सोचती हूँ कि ये जो सिचुएशन आई है ये मुझे कौन सा लेसन सिखाने के लिए आई है, व्हाट लेसन आई नीड टू लर्न नाउ। और अगर एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है आपकी जिंदगी में, बार बार एक ही तरह का पैटर्न कोई प्रॉब्लम फॉलो करिए, इसका मतलब कोई एक लेसन है जो जिंदगी आपको सिखाना चाहती है जो आप सीख नहीं रहे। लेसन्स challenges come in our life just to teach us a lesson. Although ये सेशन बहुत ज्यादा लेक्चर टाइप का हो गया, मुझे इसको लेक्चर टाइप का रखना नहीं था, बट बिकॉज ऑफ लेट मी जस्ट फिनिश विद द प्रेजेंटेशन एंड देन वी कैन टॉक। जो विक्टिम होता है वो बोलता है कि मैंने थोड़ा सा और मेहनत किया होता है इस रिलेशनशिप में तो वो इंसान अभी तक भी मेरे साथ होता। सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो ये बोलेगा। और जो विक्टर है, जो चैंपियन माइंडसेट है, वो बोलेगा जो होना था हो गया, और अब मैं आज से अब मैं अपनी पर्सनैलिटी में क्या बदल सकता हूँ। मतलब आप जो विक्टिम है वो पास्ट के बारे में सोचेगा और जो चैंपियन है वो प्रेजेंट के बारे में सोचेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आप पास्ट के बारे में तो कितना भी सोच सकते हो। प्रीति ने आज मुझे बहुत सुंदर एक बात बोली थी कि एट एनी टाइम यू सेड ना अबाउट पास्ट और वरी, व्हाट वाज दैट? इट्स लाइक कि सारी प्रॉब्लम्स का जो जड़ है ना वो सिर्फ दो है, मतलब रूट कॉजेस। वन इज मेमोरी एंड सेकंड इज इमेजिनेशन। मेमोरी इज क्या हुआ था पास्ट में, ये हुआ था वो हुआ था, वो सब प्रॉब्लम्स। एंड सेकंड इज इमेजिनेशन, अब क्या होगा, हम ये कर देंगे तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हस्बैंड के साथ क्या होगा, मेरे बेबी का क्या होगा। व्हाट two root causes, memory and imagination, and you can work on that and you can change your entire life. It is like Sadhguru, I follow Sadhguru, it is not from my side, I follow him and उन्हीं का ये quote है. Wow, thank you for sharing. So Anupama, Preeti and Kirti we all are chilling here with our three kids, और हमारे बच्चे भी swimming pool में and we're taking a session here. And we are taking a session here. And I had a lot of thinking कि मेरे को मतलब मेरे बहुत लोग ये बोले थे तू पागल है, तू वहाँ चिल आउट करने जा रही है, बट आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा चिल आउट करना अपने क्लेफ्ट संडे पे सबसे अच्छा लगता है। सो जो विक्टिम है वो बोलेगा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये सब इन लोगों की गलती है, इसकी गलती है। हर घर में कोई एक इंसान ऐसा जरूर होगा जो पूरे घर में सबकी कमियां गलतियां बताता रहेगा, सबको क्रिटिसाइज करता रहेगा। So I mean the best way is खुद को क्रिटिसाइज करो और लोगों को एक्सेप्ट करो। हम क्या करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। हम बोलते हैं हम सपोज मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं सुबह नहीं उठ सकती, सो आई एक्सेप्ट, मेरे से तो सुबह नहीं उठा जाता, लेकिन अब मैं दूसरों से जो उम्मीद कर रही हूँ कि इससे ये करना चाहिए, इससे वो करना चाहिए, सो वी आर क्रिटिसाइजिंग अदर्स एंड वी आर एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ, जबकि होना ही चाहिए कि वी शुड एक्सेप्ट अदर्स एंड क्रिटिसाइज आवरसेल्फ। एक्सपेक्टेशंस हमसे होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस औरों से होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, किसी को कुछ पता, मतलब कैन एनीबॉडी शेयर व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि ये होना चाहिए, मतलब व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अदर्स एंड व्हाई वी शुड क्रिटिसाइज आवरसेल्फ। कैन एनीबॉडी वांट्स टू शेयर, or should I highlight enlighten? We can see a lot we have of to take responsibility on ourselves. Hello. Yeah. I just want to say that how to change a victim mindset to a victor mindset.
Okay, we will come to that after Okay. once we finish the victim and victor. But my question was कि accept क्यों करना चाहिए लोगों को, और हम लोगों को criticize करते हैं तो क्या होता है, मतलब what happens, why shouldn't we criticize? We Criticize करने don't में क्या take गलत any responsibility. है? Wants to speak, Dr. Shreya? Yes, please. Yeah, you can For speak. our happiness. For our happiness. For our happiness. For our happiness, yes. And criticize करने से क्या problem है? दूसरों को अगर हम criticize करें तो क्या problem है? अच्छा ही है, हम उनके भले के लिए कर रहे हैं. नहीं, why should we waste our energy in criticizing somebody? है ना? We should say good words to them so that they also feel happy and we also feel happy for them. Yeah. So what happens is when we criticize people, we reduce their energy also. It's not just about us. It takes us on a lower vibration. वो तो है. Vibration का session में कभी और लूंगी. It's a pure science. Every emotion is connected to a frequency. There are lower frequencies, there are higher frequencies. Higher frequency पे आप रहते हो तो आप खुद को खुश रख सकते हो. Lower frequency पे आप रहोगे तो आप खुद ही डाउन रहोगे. तो एक तो क्रिटिसिज्म हमें लो फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है, वो तो अलग है, लेकिन जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है. अब वो अपनी जिंदगी में कुछ चेंज करने लायक रहेगा ही नहीं. आपने उस इंसान को पहले से इतना डाउन कर दिया है. आप अगले को एक्सेप्ट करो. यू कैन सजेस्ट कि अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, बट आप उसको एक्सेप्ट पहले करो. दैट एक्सेप्टेंस गिव द अदर पर्सन द एनर्जी ऑफ लव एंड द एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. And the criticism towards ourselves gives us goals to grow better in life. So, Ritu, Meenakshi wants to say something. Yeah. Yeah, we Meenakshi, don't you can speak. we don't take any responsibility, so we criticize others. Yeah. If we take responsibility, then we'll stop criticizing others. Yeah. So, so going on to the completing the victim and victim mindset वाला ये कि मेरे बॉस हमेशा मुझ पे चिल्लाता रहता है, वो मेरे को कभी अप्रिशिएट नहीं करता है, मैंने कंपनी के लिए इतना किया. और जो विक्टर है, जो चैंपियन माइंडसेट है, वो बोलेगा कि मैंने अपना बेस्ट कर लिया और हो सकता है कि अभी चीजें उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला कोई और नहीं. इट्स मी हु विल डिसाइड माय फ्यूचर. अगर इस सिचुएशन का रिजल्ट बेटर नहीं भी होता है तो इट्स ओके, आई विल डिसाइड माय फ्यूचर. सो मतलब बहुत लोग कहते हैं ऐसा ये आसान नहीं है, सिचुएशंस जब आती है तो आसान नहीं है. सो आई टेल यू, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. मेरे घर में चोरी हुई थी. क्या मैं ये एग्जांपल पहले दे चुकी हूँ चोरी वाला क्लेफ्ट में? ओके, थैंक गॉड, वरना मुझे लगा मैं बोल चुकी हूँ. तो क्या हुआ था कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, आई वाज 5 months प्रेग्नेंट एंड I came back from office 4 o'clock in the evening and my house was broken. मतलब सारे ताले टूटे हुए थे, घर के सारी अलमारियां टूटी हुई थी. आई थिंक कम से कम 4-5 घंटे लगा के उन्होंने तोड़ा फोड़ी की होगी टू चोरी करने के लिए. दिन दहाड़े चोरी थी. एंड मेरे को लॉकर नहीं मिल रहा था, तो मेरा शादी के बाद वाला सारा गोल्ड सारा चोरी हो गया. लैपटॉप, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसका मुझे सच में दुख हुआ था. एंड सो मेनी थिंग्स चोरी हो गई. एंड एट दैट पॉइंट, उसके बाद 6 महीने तक मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, जब भी मेरी उनसे बात होगी, दे विल स्टार्ट क्राइंग कि तेरा सब चला गया. एंड माय एटीट्यूड इज दैट फाइनेंशियल लॉस इज द चीपेस्ट लॉस. अगर आपकी कोई सिचुएशन आई है जिसमें कि आपको लॉस हुआ है, तो लॉस कई तरह का हो सकता है. हेल्थ का लॉस हो सकता है, यही चीज और भी बुरी हो सकती थी. मतलब मैं ये नहीं कह रही इतना पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट. दैट आई डिड नॉट क्राई एट ऑल, but my mom, my sister, they were in like really sad for a few months. And for me it was like इससे बुरा भी हो सकता था. अब मैं बताती हूँ इससे बुरा क्या हो सकता था. what used to happen was, कई बार मैं बाहर से ताला लगा के, मतलब मैं घर में, मैं इतनी टायर्ड होती थी, इतनी वीक होती थी कि मैं कभी कभी घर के अंदर बोल देती थी बाहर से ताला लगा के चले जाओ, मेरे को नहीं जाना, मैं अंदर ही रेस्ट करूँ. तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आई कि उस दिन ये भी तो हो सकता था कि मैं घर के अंदर होती और जब चोर घर के अंदर घुसता और उसको मैं अलाइव, उसको एक इंसान दिखता, तो व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड. मतलब इससे बुरा भी तो हो सकता था. सो इट्स ओके, पैसा तो मैं दोबारा कमा सकती हूँ. हालांकि आज तक मेरे पास वो ज्वेलरी वापस नहीं आई. इट्स नॉट वेरी इजी टू अर्न दैट मनी, बट फाइनेंशियल लॉस इज स्टिल for me the cheapest loss, and I was able to handle that tragedy. Or I mean, I don't take it as a tragedy, but it was a materialistic tragedy. So that's all. मतलब in any situation you have a choice. कि आप रो के आप अपना, अगर रोने से क्या होता, रोने से क्या हो सकता था? क्या वो चोरी वापस आ सकती थी? मतलब वो जो चोरी हो गया, क्या वो वापस आ सकता था? अगर वो वापस आ सकता है तो बिल्कुल रोना चाहिए. मुझे लगता है कि अगर 6 महीने तक रोते रहो, अगर रोने से कुछ बदलता है, then you should cry.
बट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि जो मैं इस वक्त कर रही हूँ ये मेरी एनर्जी को नीचे ले जा रहा है या ऊपर ले जा रहा है। मतलब हर वक्त हमारे पास चॉइस होती है, हम लोगों को ब्लेम करते रह सकते हैं, या फिर हम रुक के पूछ सकते हैं कि आज ये जो सिचुएशन खराब हुई है इसमें मेरा क्या रोल था। जिंदगी में अगर आपको ऊपर जाना है और विक्टिम से विक्टर की तरफ जाना है, somebody asked this question, तो मेरा सबसे फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि स्टॉप वॉचिंग अदर्स, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स, स्टार्ट लुकिंग एट योर ओन सेल्फ। इट्स लाइक आप अपनी कार चला रहे हो, आप रोड पे हो और रोड पे पूरा ट्रैफिक जैम है, सब लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको किसी दिशा में जाना है। अब आप अपनी गाड़ी रोक के दूसरों को बोलते रहोगे तू इधर चला रहा है, तू उधर चला रहा है, तेरी स्पीड ज्यादा है, तेरा ब्रेक ज्यादा है, या आप अपनी गाड़ी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करोगे और एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करोगे। व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई एंड एस्केप फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, एंड आप चुपचाप, आपका फोकस रहेगा कि मुझे किसी तरह से इस सारे केओस से बाहर निकल के अपनी गाड़ी को सही जगह ले जाना। बट हम लाइफ में ये नहीं करते। हम लाइफ में क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, हम अपनी गाड़ी को साइड में रख देते हैं, हम रोड पे खड़े हो जाते हैं और हम बोलते हैं तेरी गाड़ी में ये गलत है, तेरी गाड़ी में ये गलत है, तेरी गाड़ी का पहिया गलत है, तेरी गाड़ी का पेट्रोल गलत है। Everybody in every house, every day I see people who are so sad by the people criticizing them. जो लोग उनको criticize कर रहे हैं constantly, and it reduces a lot of energy. मतलब criticism reduces a lot of energy. Even Anupama, I would like you to share the Teach for India thing, जिसमें आप बच्चों को Anupama will share one thing which was a very useful trick for me, कि जब भी बच्चों को teachers Anupama will say. Anupama was a fellow in Teach for India. Anupama, please share your journey. I was a fellow as a teacher for as a part of Teach for India program. वहाँ पे हमें for 2 years we actually go to the government schools and we go and we talk. We teach kids over there, the underprivileged and less privileged kids. And this is a program which is across India. You can join it and give your 2 years to improve education. And now even the government is taking up a lot of efforts to, take strategies from Teach for India and bring it in the classrooms. So over there, as a Teach for India teacher, I was firstly taught during our training that you cannot criticize a kid, just criticize. मतलब आज आपने homework नहीं किया है, you cannot say that. You have to first find out 3 reasons कि उसने क्या अच्छा किया है in the classroom. For example, आज उसने English की क्लास में hand raise किया है. Second, उसने हिंदी की क्लास में ये word अच्छा बोला है. And then third, अगर उसने maths की क्लास में homework नहीं किया है, then you will only say after saying 3 good things about what the student has done. And the fourth one will just, if you want to criticize, the fourth thing will actually be like a suggestion कि आपने होमवर्क, मैथ्स में होमवर्क या ये क्वेश्चन सॉल्व यहाँ तक किया है, आगे नहीं हुआ, क्या रीजन था, क्या ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्या ऐसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं. So that was one very key takeaway which I have also I have been doing it in my life as well. I have not been criticizing people just randomly. I find out 3 good things, and the fourth thing that I will tell is, if I want to criticize, I'll give it as a suggestion कि ये आप ठीक कर सकते हो या ये इसको ऐसे कर सकते हैं, rather than just saying कि अरे ये क्यों नहीं किया. That's a huge distinction, and that is something which we should follow in our lives, in and out daily. Kids, so it's okay, kids, and it impacts kids to a lot extent because it actually just changed their way of thinking. And I think the same thing happens with us also. So yeah, that's my share. Dr. Kirti, you can take it from here. We decided, me and Anupama, we decided to introduce this as a concept in CLEF, where we will invite you all to take it as a sandwich theory. आपको किसी को भी कुछ suggest करना है, criticize करना है, तो take it as a sandwich. पहले उसकी 2 अच्छी चीजें सोचो कि ये इंसान 2 अच्छी चीजें कौन सी कर रहा है, और फिर उसको वो 2 अच्छी चीजें बताओ कि I really like this about you, I really like this about you, and this is where I feel that I want to share a feedback. Try and be, हम अपनी लैंग्वेज को इतना नेगेटिव होने देते हैं कि वो अगले इंसान को एक्चुअली में पियर्स कर दे. वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज जहाँ पे हम दूसरों को एनर्जी डाउन ना करके हम दूसरों को एम्पावर कर सके. इवन आई हैव टू लर्न दैट स्टिल. जिस दिन मैंने कुछ सीखा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. एंड या मतलब सो थंब रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एक ही होता है कि यू ऑलवेज हैव टू सी योरसेल्फ. किसी भी सिचुएशन में उस प्रॉब्लम में आपको देखना है मेरे हिस्से की प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे ब्रेकडाउन में मैं ऐसा क्या कर सकता था कि ये ब्रेकडाउन अवॉइड हो सकता था. अगर आप ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हो
तो आप ऑलरेडी एक चैंपियन हो। अगर आप ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो, आप ये देखते हो इस पूरे सिचुएशन में जो गड़बड़ हुआ है इसमें उसकी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, तो फिर आप विक्टिम माइंडसेट हो। आपको चैंपियन बनने के लिए फिंगर पॉइंटिंग बंद करना पड़ेगा, ब्लेमिंग बंद करना पड़ेगा, और आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें 50 लोग हो सकते हैं जिम्मेदार हो, आपको उसमें से सिर्फ अपना वाला हिस्सा ऑफ द मिस्टेक, यू हैव टू बी दैट मच डेयरिंग, इतना करेज होना पड़ेगा, इतनी हिम्मत होना पड़ेगा कि मेरी वाली गलती कौन सी है, मैं इस पूरे सीन में मैं क्या बेटर कर सकता था, या मैं क्या बेटर कर सकती थी, क्या पॉजिटिव कर सकती थी कि शायद आउटकम इतना बुरा नहीं होता, या शायद आउटकम इतना नेगेटिव नहीं होता। अगर आप इस तरह से सोचते हैं या सोच सकते हैं, देन आप चैंपियन बनने की तरफ है। प्लस ये सब ऑटोमेटिक नहीं होता है, योर लाइफ इज अ रिजल्ट, यू आर योर पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ 5 पीपल जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। प्रीति, हाँ प्रीति बिल्कुल अच्छा बता रही थी, बट वो बच्चों को देखने के लिए चली गई है। नेक्स्ट शी विल आल्सो टेक अ सेशन सम टाइम। अभी वो सोच रही है कि उसकी जिंदगी का उसको किस चीज पे सेशन लेना है। और आप सब में से भी अगर कभी भी कोई क्लेफ्ट पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बोलना चाहते हैं, कोई सेशन है आपके पास, कोई नॉलेज है आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी चीज आप किसी भी तरीके का डिस्कशन करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए, वी विल डू दैट फॉर यू। तो यस, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि आज तक मैं विक्टिम था और आज मैं विक्टर बन जाऊंगा। नो, इट्स नॉट अ वन डे थिंग, इट्स अ माइंडसेट। इट टेक्स अ लॉट टू प्रैक्टिस द माइंडसेट। इट्स लाइक अ मसल, मेंटल मसल। आप एक्सरसाइज करके एक दिन में मसल बिल्डअप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बार बार कोई चीज प्रैक्टिस करके यू कैन स्ट्रेंथन योर मसल्स। It's the same way we have to develop our intellect, we have to develop our mental muscle. And is it anything you want to say? So that's all. I think later on विक्टिम और विक्टर माइंडसेट के आज क्योंकि टाइम कम है, हम लाइव है, बहुत सारे ब्रेकडाउन भी हो गए, एंड आई वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू। सो सम अदर टाइम इसी चीज को और बेटर करने के लिए वी विल टेक सेशंस, एंड वी विल कीप टेकिंग सेशन। सारे सेशंस का हम अनएडिटेड वर्जन और एडिटेड वर्जन अभी हमने डालना शुरू नहीं किया। अनएडिटेड की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास होती है। अगर कोई सेशन आप मिस करते हैं कभी और आपको उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, प्लीज लेट अस नो। और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक्स है, प्लीज गिव अस योर फीडबैक्स। एंड yeah, I want to hear from you guys. Anupama, now you can take it from here. We can take Thanks Dr. Kirti. I think it's a very useful session, though we had breakdowns, but we did take the session. We did not let it break us down. yes, that's the most important thing. And when we are taking up a live session and such a thing happens, so this in itself is an example that we both are. One more thing, with the champion mindset, आप हर breakdown को breakthrough में convert कर सकते हो. You can convert every breakdown into a breakthrough. क्योंकि उस breakdown के साथ एक challenge आया है, और जिस वक्त आप उस challenge को overcome करते हो, तो आपने already उस breakdown को breakthrough में convert कर लिया. Nitin Thambi has raised his hand. Yeah. So there is a question coming in from Nitin. Nitin, you can unmute yourself and ask the question. Ma'am, Dr. Kriti ma'am, I can give a solution for that. This breakdown. There is a solution for that. You can share the PPT with 3 people and give them a co-host authority, so that if your laptop breakdowns, you can the people with another laptop or another mobile, you can use. Yeah, we did that. Nitin, actually the problem is that even our technology, one of our team members, Yash, who is actually there, even his internet broke down in the last 5 minutes before the session. 5 minutes. मतलब हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है यश, लेकिन इससे मुझे ये पता चलता है कि हमें हमारी टीम के अलावा वी हैव टू फाइंड आउट 2-3 मोर पीपल जिनको हम को-होस्ट बना सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड आइडिया नितिन। वी कैन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होगा, हम पहले से ही इनवाइट कर लेंगे कि कोई ऐसा है जो हमें को-होस्ट बनने के लिए तैयार है, वी विल शेयर द पीपीटी। वेरी गुड आइडिया, थैंक यू Nitin. Wait, I'll also take some questions which are coming in the chat. Chat mein there is session. Someone has asked that if victor and victim is married, what to do? We all are this world is all a combination of victims and victors. Even a victor person, एक चैंपियन इंसान भी किसी भी टाइम पे विक्टिम माइंडसेट में जा सकता है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा आप विक्टर माइंडसेट में, विक्टिम माइंडसेट में? आप अच्छा फील कर रहे हो या बुरा फील कर रहे हो, या व्हाट इज योर एनर्जी? आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ बुरा लग रहा है, जिंदगी खराब है, लोग खराब है, रिश्ते खराब है, जॉब खराब है, सब खराब है, तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग खराब है। सो ऐसा नहीं है कि वो चीजें चेंज नहीं हो सकती, बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट अफेक्ट्स यू वेरी मच। कोई ना कोई चीज आपको मतलब
एंड विक्टर विक्टिम बन सकता है, विक्टिम विक्टर बन सकता है। मैं तो इस माइंडसेट में आए हुए मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड जब से मैंने क्लेफ्ट ज्वाइन किया तब से मैं थैंकफुली मैं इस चीज को मेंटेन कर पाती हूँ ज्यादा लेवल तक। अब आई एम एबल टू मेंटेन माय हाई एनर्जी ऑल द टाइम। वरना एनर्जी अप एनर्जी डाउन, एनर्जी अप एनर्जी डाउन हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैंने since in last September I started antidepressants medicines. We all go through our challenges. I left my job. I was not able to continue my job with my the challenges जो मेरे बेटे के साथ आ रहे थे, उसके एकेडमिक्स और लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें थी पर्सनल लाइफ में हो रही थी जो इनको मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। आई लेफ्ट माय जॉब, आई वाज होम फॉर 2 months. I was on antidepressants. I'm out of depression. I was on antidepressant. I became a victim myself. We all keep switching from the mindsets. But आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी अच्छी चीजें सीखोगे, जितने अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, या जितना आप लर्निंग को इम्पोर्टेंस दोगे, पर्सनल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दोगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आप विक्टिम पे कम रहोगे और आप विक्टर पे ज्यादा रहोगे। एंड डेफिनेटली हमारे पास, हम में से हर किसी के पास ऐसे लोग हैं जो ग्रो करना ही नहीं चाहते हैं। So my invitation to all of you is stop focusing on them. It's not about them. It's about you. You have to find out कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए पॉजिटिव कैसे रहूं। आपको क्या लगता है मेरे आसपास नेगेटिव नहीं है, पर मतलब you have to develop that immunity. कोरोना तो रहेगा, हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है ना। सो विक्टिम्स तो सब जगह रहेंगे, हमें डेवलप करना है कि मैं उनके बीच में भी पॉजिटिव कैसे रह सकती हूँ। सर्दी है, आप बाहर निकलोगे, आप बीमार पड़ जाओगे। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय अ ब्लैंकेट, यू कैन बाय अ जैकेट, you can protect yourself from the cold. So if you have victims all around you and if you feel you are more towards champion mindset and you get affected, so for all those people I'll share 3 things. Alka ji is writing comments. Alka ji has listened to this conversation before. 2014 में जब मैंने ब्रह्मा कुमारी में एक लेक्चर लिया था, तब मैंने बताया था कि there are 3 stages of energy. एक में हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि कोई पॉजिटिव इंसान मिला हम पॉजिटिव हो गए, कोई नेगेटिव इंसान मिला हम नेगेटिव हो गए। हम अच्छे लोगों की कंपनी में अच्छी अच्छी चीजें सोचने लगते हैं, अच्छा अच्छा फील करने लगते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त हम किसी नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के बीच में बैठ गए तो हम वैसी ही उनकी जैसी टॉक्सिक थिंकिंग भी क्रिएट करने लगते हैं और हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। सो दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपका अपना कुछ नहीं है। यू आर सो सेंसिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। नाउ द सेकंड स्टेज, आप अपने आप पे काम करते रहो करते रहो करते रहो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते रहो, तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आपके चारों तरफ एक थोड़ा सा स्ट्रांग आप हो गए हो, आपकी ऑरा थोड़ी स्ट्रांग हो गई है कि अब आप अपने अंदर जो आपने क्रिएट किया, अपनी एनर्जी को आप मेंटेन कर पाते हो। आप नेगेटिव लोगों के बीच में भी उनसे नेगेटिव नहीं लेते हो, लेकिन आप अपना विक्टिम माइंडसेट मेंटेन कर पाते हो, लेकिन आप विक्टिम्स को चेंज नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज द सेकंड स्टेज. And then there is a third stage, which is a positive stage, where you become so energetic and so charged कि आप, पहली बात तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास विक्टिम है या विक्टर है, बट सेकेंडली जितने जितने विक्टिम लोग हैं वो भी आपकी एनर्जी से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि दे ऑल्सो वांट टू बी द विक्टर, they also want to be like you, they also want to be on that high energy like you. So it's just a progress report, it's just a growth chart. मतलब फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल थर्ड लेवल हम सबको ये करना ही है. We all are masters of universe. God has made us to be unique and it's not my thinking. हम में से हर कोई इस लेवल पे जा सकता है, हम सबका एक कोई ना कोई पर्पस है. So be your best, make right choices, make better choices, don't go for easy choices, don't go for shortcuts, and yes, growth is inevitable. Growth को कोई रोक ही नहीं सकता. That's all. I'm done for today. Great, that was really useful. So if you have any more questions, we would suggest you to put it on the group. You can also put it on our WhatsApp group, and at the same time on our Cleft Facebook group. We'll be more than happy to answer all your questions, and at the same time, since the PPT that was missed, we will share it on the group as well. And there also you will get an idea about what we were talking, and it'll make more sense. And again, as we are live, so the session is already recorded. You can go back and connect yourself, and then think over it, and then come back with questions, because I think there is something which you have to take in, think about it, and then come back with questions. And we'll be happy to answer all your questions, all your queries, and at the same time we would love your feedback too. That said, since we committed for by 1 p.m, Dr. Kirti, we'll sign off for this session. Yeah, and I Thank you so much. say one more thing. Please feel free to share
योर एक्सपीरियंसेस ऑन लाइव, क्योंकि जितना जितना हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इट्स अबाउट ड्रॉपिंग द हेजिटेशन, एंड दैट इज द फर्स्ट Yeah. स्टेप. 6 months बिफोर, 6 नहीं, लास्ट मार्च, एक साल हो गया, एक साल पहले मेरे एमबीबीएस बैचमेट्स ने डिसाइड किया था कि ग्रुप वीडियो बनाएंगे. उस टाइम पे मैं इतनी हेजिटेट करती थी सामने आने में, वीडियो में आने पे, कि आई लिटरली डिसाइडेड कि मैं उस वीडियो का पार्टिसिपेट नहीं करूंगी. एंड मैंने जिस दिन अपना हेजिटेशन ड्रॉप किया, वो दिन और आज का दिन आप देख लो, अभी मैं लाइव सेशंस ले रही हूँ. So dropping the hesitation is first step, but it can turn out to be the biggest step of your life. It was biggest step of my life. I still thank my MBBS batchmates, especially Rashmi Bisla and Nidhi and all those people जिन्होंने वो इनिशिएटिव लिया था. उन्हीं की वजह से आज मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आज कुछ भी कर पाती हूँ, बिकॉज अब हेजिटेशन नहीं है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने हेजिटेशन ड्रॉप करके नेक्स्ट टाइम आप सेशन में एक्सपीरियंस शेयर करो अपना. दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, शायद आपके एक्सपीरियंस सुन के शायद कोई अपनी जिंदगी में कुछ चेंज कर पाए. एंड अगर हम एक भी इंसान की जिंदगी को टच करते हैं, तो वो एनर्जी आपको हमेशा फील होगी. दैट्स द वे टू फील एनर्जेटिक. थैंक यू ऑल. Yeah. All right. Thank you all. So, Anyone want to say anything? Yeah, I want to ask, but time is 1 o'clock. Then I'm Yeah, नहीं, it's okay. 1-2 मिनट ऊपर जाने से कुछ नहीं होता है. yeah. Yeah, I just want to ask how to take the right choice in the life. If you are if a problem is coming, how to take the right choice? That's the question I want to take. Right. So I think can I answer that question? Yeah. So I think Nitin, whenever there is a problem, there is always a gut instinct. To make a decision, whenever you're going to just take a decision, there is always an inner voice which is going to tell you what is the right decision, and you should follow that. It's your gut instinct, because your gut instinct, I think, it will never lead you to a wrong decision. It could be a wrong decision for a lot of other people, but it will not be a wrong decision for you. It will be the right decision for you. For how the world perceives it, what the world does it, how the world judges you after that, that is not that should not be the deciding factor. It should be you, because you are deciding for yourself. So I think one very good way is to just follow your gut. And your gut is something when your mind and your heart are in sync. जब वो दोनों एक ही चीज बोल रहे होंगे. जैसे a very small example, when you're going on, as Dr. Kirti just took an example of driving your car. When you're driving your car, there would be areas jahan pe there'll be road block downs, where it will say that, okay, this is the end of the road. Either you can take a U-turn, or maybe if it is a T-point, you will have to take a right or a left, or you just take a U-turn. And it is at that point of time that there will definitely be something coming in from your mind that, let's take a right, let's take a right, let's take a right. But maybe you might just say no, because if you ask someone else ki right jana chahiye, left jana chahiye, there would be people who will say, "Arey, aap left chale jao." But your gut will always say, okay, take a right. And that moment is where you have to decide and choose your gut's thought process and go and take a right. And that will be the right decision. Thank you. So, thank you. I would also like to add just a bit here कि right decision नहीं, पहले तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त आप अपने आप से ये सवाल करो कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट डू आई रियली वांट. मतलब मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, ये मम्मी पापा भाई बहन भैया भाभी के कहने पे कर रहा हूँ, सोसाइटी 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कौन होते पता नहीं, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ. सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ. दूसरा सवाल खुद से ये होना चाहिए कि क्या ये डिसीजन मेरे पर्सनल, विल इट मेक मी अ बेटर पर्सन और वर्स पर्सन, इज इट गोइंग टू बी टेक मी टू ग्रोथ, और मतलब या तो आपको बिटर बनाएगा या बेटर बनाएगा, या आप डेवलप कर रहे हो या आप डीके कर रहे हो. तो वो कुछ क्वेश्चंस है जो आप अपने आप से पूछ सकते हो. बट वी कैन टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड and we will talk some other time, Nitin, about this. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Take care. Alata ma'am ने लिखा है, join late Kirti, your background is as positive as you appreciate your initiative. Thank you, ma'am. Ma'am, I'm in Calcutta, Taj, Calcutta, hanging out with my cousin and my sister. तीनों अपने अपने बच्चों के साथ में आए, and we decided to take this live session. Oh, that's great. I had a wonderful time. Thank you. I joined late, so I couldn't say much on your topics. But whatever I heard, it's giving me a lot of hope that you're going in the right direction. Both. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, best of luck for future sessions also. Okay, let's leave the call. Thank you all. Thank you so much.
Bye. See you all next time.